So hello everyone, once again welcome back to my channel. In this video, I will be discussing how to write an 8-band IELTS writing task to essay. I know many of you struggle, but in this video, I will be giving the templates and one single structure जिसको use करके you can write 8-band IELTS writing task to essay. I will be discussing each and everything, how vocabulary words, collocations, language, IDP's format, and a single structure will help you to score minimum 7 and up to even 9 in your IELTS writing task too. So without wasting time, let's get started. So basically the question says, some people believe that the healthcare should be free and fully funded by government rather than private organizations. Do you agree or disagree? तो इस क्वेश्चन में टाइप है डू यू अग्री और डिसअग्री. अगर आपने 8 बैंड लेने हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि पेपर में आपने एक ही ऐसे लिखना है. तो अगर आप एक ही फॉर्मेट, एक ही स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, आप बेटर वे में लिख पाओगे. कैसे? लेट्स डिस्कस. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब इसमें बॉडी पैराग्राफ्स कितने बनेंगे और किस चीज को लेके बनेंगे. अगर आपका ऐसे डू यू अग्री और डिसअग्री को लेके है, आई विल रिकमेंड कि BP1 अग्री लिखो, BP2 आपका डिसअग्री लिखो. दैट मीन्स हमेशा आपने पार्शली अग्री की तरफ ही जाना है. सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. एंड ऑलवेज फॉलो IDP's पैटर्न. जैसा IDP ने बोला वैसा IDP कहता है कि स्टार्ट विद द general background statement. So in this case, healthcare system co-location around the world differ greatly. Co-location in terms of affordability and government involvement. Government involvement, co-location. Just look at the vocabulary words and co-locations I have used. This is for 8 band, but 5 band के लिए भी मैं आपको templates दे के जाऊंगी. There is an ongoing debate. ये होती है आपकी rephrasing, particularly in agree disagree type of essay. आप कैसे rephrase करोगे? There is an ongoing debate about whether, यहां तक same to same, no change, whether medical services should be fully funded and controlled by the government. ये हो गया आपका rephrasing. थर्ड लाइन आती है stating your position. मैंने लिख दिया I partly agree with this view. अपनी पोजीशन को क्लियरली स्टेट करो. डोंट अज्यूम कि एग्जामिनर्स को शो हो रहा है आपके एसे से, आपने क्लियरली लिखना है. सो इन माय ओपिनियन, आप अग्री क्यों कर रहे हो या पार्टली अग्री क्यों कर रहे हो, आपने साथ में R1 रीजन 1 BP1 का मेन आइडिया, R2 रीजन 2 BP2 का मेन आइडिया साथ ही में ही ऐड कर लो. इन माय ओपिनियन वाइल का मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूज करा. वाइल हेल्थ केयर शुड बी फ्री फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब जो पुअर होते हैं, individuals from financially secure backgrounds, जो wealthy people होते हैं, should contribute to the cost of their treatment. In this essay will discuss the reasons for this position. ये होगी आपकी thesis line. Basically, start with this general background statement, rephrase the question, state your position, adding your reason 1, reason 2, and outline your essay कि आप आगे क्या लिखने वाले हो. ये IDP ने बोला, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है. You just have to follow the structure. जनरल लाइन लिखी आपने, फिर there has been an ongoing debate about whether एक सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करो जिससे आपकी गलतियां ना हो. I partly agree to this viewpoint. Same to same, no change. In my opinion, same to same, no change. R1 and R2. This essay will discuss the reasons for this position. Same to same, no change. इतना फॉर्मेट को फॉलो कर लो, इसी को प्रिपेयर कर लो, 8 बैंड कहीं नहीं जाएंगे. इससे नेक्स्ट चीज आती है कि यूजिंग द रेंज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोलोकेशंस, ग्रामर अच्छी एंड सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस. नेक्स्ट आ गया आपका बॉडी पैराग्राफ 1. IDP सेज कि आपने पील मेथड यूज करना है. पील का मतलब होता है, P मींस मेन पॉइंट. वन की रीजन व्हाई हेल्थ केयर शुड बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट इज टू सपोर्ट द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. ऊपर लिखा था अंडर प्रिविलेज, उसका सिनोनिम यूज कर दिया इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जिनके पास पैसे नहीं होते. मेनी लो इनकम फैमिलीज, जिनके पास पैसे नहीं होते. सिनोनिम्स, स्ट्रगल टू पे फॉर सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट, जिनके पास सीरियस अगर मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके पास पेमेंट करने के लिए नहीं होती इतनी इनकम. विच कैन लीड टू डिलेड डायग्नोसिस, विच कैन लीड टू. हमेशा जब भी आप एक्सप्लेन करो, इसमें दो चीजों को ऐड करना कि अपने मेन पॉइंट चूज क्यों किया. क्यों मतलब उनके पास पैसे ही नहीं है, इससे होगा क्या, विच कैन लीड टू. हमेशा यही फॉर्मेट को फॉलो करो, विच कैन लीड टू, विच कैन कंट्रीब्यूट टू.
लीड टू डिलेड डायग्नोसिस एंड इवन लॉस ऑफ लाइफ। अगर बीमारी का पता ही नहीं चलेगा, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, इट इंश्योर्स दैट एसेंशियल सर्विसेज रिमेन accessible to everyone regardless of their financial situations। तो बेसिक ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वेरियस पब्लिक हेल्थ स्कीम्स प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज्ड केयर फॉर सिटीजन्स फ्रॉम द वीकर सेक्शंस या वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, enabling them to receive timely treatment। अब इंडिया में कई जगह पर ऐसे होता है कि जो वीकर बैकग्राउंड्स होते हैं उनके लिए अलग से स्कीम्स होती हैं ताकि अपना ट्रीटमेंट टाइमली करवा सके। ये हो गया आपका BP1। सिंपल 4 लाइनों में मेन पॉइंट। ई का मतलब एक्सप्लेन वाई आपने पॉइंट चूज किया, प्लस इसके साथ रिजल्ट, उसका असर क्या होगा, एग्जाम्पल एंड लिंक बैक टू द मेन आइडिया। इसके बाद BP2, जब भी आप पार्टली एग्री जाते हो आप हाउ एवर के साथ या ऑन द अदर हैंड के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया ऑन द अदर हैंड। पीपल हु कम फ्रॉम फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड्स, जिनके पास पैसा है, शुड कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स, वो अपना कॉस्ट को खुद करे कंट्रीब्यूट। हाई इनकम हाउस होल्ड जनरली हैव बेटर एक्सेस टू इंश्योरेंस प्लान्स एंड सेविंग्स। जो हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं उनके पास इंश्योरेंस होती हैं, उनके पास सेविंग्स होती हैं, विच मेक्स इट रीजनेबल, विच कैन लीड टू, विच कैन कंट्रीब्यूट टू, विच मेक्स इट रीजनेबल टू पे अ पोर्शन ऑफ देयर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। फॉर इंस्टांस कॉस्टली प्रोसीजर्स सच एज कैंसर ट्रीटमेंट और डायलिसिस रिक्वायर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब सब्सटेंशियल मैंने ऐड कर दिया बहुत ज्यादा, कि ज्यादा पैसे लगते हैं इन ट्रीटमेंट्स में। एंड पार्शियल पेमेंट फ्रॉम अफ्लुएंट फैमिलीज कैन मेंटेन अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम। तो अगर पार्शियल पेमेंट करेंगे पैसों वाले तो इट विल इंश्योर द फेयर एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम। इसके गवर्नमेंट के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आप एक लाइन कंपैरेटिव ऐड करना चाहते हो, आप एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हो। अगर आपका टारगेट सिर्फ 5 बैंड का है या 6.5 तक के लेवल का है, एंड इफ यू नीड द टेम्पलेट्स, वो मैं आपको साथ ही साथ में शेयर कर रही हूँ। हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन BP1 का फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर आपने फॉलो क्या करना है वो आपके स्क्रीन पे ऊपर आपको साथ ही में शो हो रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट सिर्फ 6 या 6.5 तक का है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने 8 बैंड को स्कोर करना है तो अभी मैं जो आपको सैंपल बता रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। इस तरीके की वोकैबुलरी वर्ड्स, कोलोकेशंस, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर आपने ऐसे फॉलो करनी है। अब लास्ट आता है हाउ टू राइट द कंक्लूजन। सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि कंक्लूजन लिखना नहीं आता। इसमें 3 मेन चीजें आप ऐड कर सकते हो फॉर 8 एंड 9 बैंड। सबसे पहले यू हैव टू रीस्टेट योर पोजीशन कि आप पार्टली अग्री करते हो। इसके बाद यू हैव टू समराइज BP1 का मेन आइडिया, BP2 का मेन आइडिया। थर्ड लाइन में यू हैव टू एड ऑन योर ओन रिकमेंडेशन और योर ओन सजेशन। फॉर एग्जाम्पल इन कंक्लूजन, ऑल्दो, जब भी आपके पास 2 अपोजिट व्यूज होते हैं आप ऑल्दो का यूज करो। हमेशा कोशिश करो कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप एक ऐसे में जरूर डालो। मैंने स्टार्टिंग में डाला था वाइल वाला, इसके बीच मैंने इफ वाला डाला, अब मैंने डाल दिया ऑल्दो वाला। तो ऐड एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप पैसिव सेंटेंस का भी यूज कर सकते हो। सो ऑल्दो गवर्नमेंट फंडिंग इज एसेंशियल to ensure that underprivileged people have access to necessary medical care, मतलब ये मैंने BP1 का मेन आइडिया ऐड कर दिया। इट ऑल्सो रीजनेबल फॉर वेल्डियर इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। से मैंने BP2 का मेन आइडिया ऐड कर दिया, साथ में ये शो भी हो गया कि मैंने पार्टली एग्री किया है। अब बैलेंस्ड अप्रोच, अब मैंने रिकमेंडेशन दे दी कि अप्रोच बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, वेयर बेसिक हेल्थ केयर इज फ्री फॉर ऑल, एडवांस्ड एंड एडवांस प्रोसीजर्स इन्वॉल्व पार्शियल पेमेंट। अगर बेसिक है वो आपकी फुली फंडेड होनी चाहिए, या आपकी एडवांस है तो उसमें पार्शियल पेमेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए। इट कैन हेल्प क्रिएट अ फेयर एंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम। अब जहां पे मैंने जो वोकैबुलरी वर्ड्स बता रखे हैं, सस्टेनेबल, सब्सटेंशियल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सिस्टम, तो ये वर्ड्स आप किसी भी मेडिकल वाले ऐसे में, गवर्नमेंट फंडिंग वाले ऐसे में आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इवन इसको और भी कई जगहों पर स्मार्टनेस के साथ यूज किया जा सकता है। सब्सटेंशियल हो गया, सस्टेनेबल हो गया, ये वर्ड्स को, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो गया, इनको आप कहीं पर भी किसी भी ऐसे में अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आपने 8 बैंड का राइटिंग टास्क टू अग्री डिसअग्री का लिखना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ समझ में आया, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।
channel. And if you want me to make all the essays videos in this similar manner with the sample answer, do comment ki we want all different types of essays. I will definitely come up with all the different types of essays with my own 8 band sample answers. So that's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, all the very, very best for your exam.